हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम देख रहे थे एमसीक्यू बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज का एमसीक्यू है ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 1824 एंगस्ट्रॉम यूनिट incident on a surface of metal produces photoelectron with maximum energy of 5.3 electron volt when light of wavelength 1216 angstrom unit is used. The maximum energy of photoelectron 8.7 electron volt. So what is the work function of the surface? What is the work function? अब देखो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा जूल में और hc बाय लैम्बडा इंटू E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc अपॉन E की वैल्यू कितना है 12.43 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू है 1824 इंटू 10⁻10 और 1.824 इंटू 10⁻7। ये -7 कैंसल और इसकी वैल्यू आती है नियरली 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन भी क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी 5.3। सो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6630 angstrom unit is incident on a totally reflecting surface. The momentum delivered by the photon is equal to, अब देखो यहाँ initial momentum of photon is p, after reflection final momentum minus p. Momentum is a vector quantity, left to right plus to right to left minus. So change in momentum of photon, change in momentum of photon is equal to final momentum minus initial momentum. So 2p और minus 2 p equal to h by lambda. ठीक है, नेगेटिव साइन शोज दैट द फोटोन लॉस मोमेंटम, और जितना मोमेंटम फोटोन लॉस करेगा उतना मोमेंटम कौन गेन करेगा, सरफेस। देयरफॉर मोमेंटम गेन बाय सरफेस या मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस। टू एच बाय लैम्बडा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, मोमेंटम लॉस बाय फोटोन, और जितना मोमेंटम लॉस करेगा फोटोन उतना मोमेंटम कौन गेन करेगा, सरफेस। सो मोमेंटम डिलीवर्ड इक्वल टू 2h by lambda 2 6.63 into 10⁻⁻34 and wavelength 6.63 into 10⁻⁻7 6630 angstrom, that is 6630 into 10⁻⁻10 और 6.63 ये कैंसल। सो 2 into 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी 2 into 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 35, फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज ए वर्क फंक्शन h nu naught, that is threshold frequency. If a photon of energy
2 times work function fall on the surface, the electron come out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ देखो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन. सो फोटोन ऑफ एनर्जी 2 times h न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन h न्यू नॉट. ये कितना हो जाएगा? h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1/2 mv स्क्वायर equal to h times threshold frequency. When the photon energy is increased to 5 times h nu naught, then the maximum velocity of photon is, so when energy of photon 5 times h nu naught, तो velocity कितना है? v2. Therefore 1/2 mv2 square equal to 5 times h nu naught minus h nu naught 4 times h nu naught. Equation number 2. Divide 2 by 1. Divide 2 by 1. 1/2 mv2 square upon 1/2 mv1 square. So 4 times h nu naught upon h nu naught. So 1 by 2 m cancel. So v2 square 4 times v1 square or v2 equal to 2 times v1. So v1 equal to 4 into 10 to the power 6. So which is equal to 8 into 10 to the power 6 meter per second. ठीक है. Next, when wavelength of incident photon is decreased, then अब देखो यार, when wavelength decreases, frequency increases because wavelength and frequency are inversely proportional to. वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा, एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट. तो नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, रॉन्ग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस so speed of photoelectron increases. Number 2 velocity of photoelectron emitted increases, second correct. Velocity of photon do not change, wrong. And photoelectric current increases, ये भी wrong है क्योंकि photoelectric current किसके ऊपर डिपेंड है? इंटेंसिटी के ऊपर. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, फॉर photoelectric emission from a certain metal the cutoff frequency is nu, that is threshold frequency कितना है? न्यू. If radiation of frequency 2 times threshold frequency impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be. अब देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h टाइम्स फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 न्यू. वर्क फंक्शन h into nu, where nu is the threshold frequency or cutoff frequency. So 1/2 mv square 2 times h nu minus h nu, that is h nu, or v square twice h nu by m. v square equal to 2 times h nu by m, or v equal to under root 2 h nu by m. So maximum possible speed v equal to under root 2 h nu by m, option D. Next, when light fall on a metal surface, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron depends on
नंबर 1, टाइम लैग फॉर विच द लाइट फॉल, ये भी रॉन्ग है क्योंकि विद इन 10⁻⁹ सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट करेक्ट है क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नंबर 3, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड है, करंट, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे व्हेन लाइट फॉल ऑन ए मेटल सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट, electron and photon have wavelength 10⁻⁹ meter. So wavelength of electron and wavelength of photon equal to 10⁻⁹ meter. If E is the energy of photon and P is the momentum of electron, then magnitude of E upon P is, अब देखो यार, energy of photon E is equal to hc by lambda, energy of photon E is equal to hc by lambda and momentum P equal to h by lambda. Momentum of electron P equal to h by lambda, lambda is equal to h upon mv और lambda equal to h upon P और P equal to h by lambda. Therefore E upon P, therefore E upon P hc by lambda h by lambda, वेवलेंथ सेम है, कैंसल, एच एच कैंसल, तो C that is 3 × 10⁸. तो ऑप्शन थर्ड 3 × 10⁸. नेक्स्ट है, एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड ऑन अर्थ एट द रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो पहले लिखेंगे एनर्जी रिसीव्ड कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है। सो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो 2 × 4.2 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, दैट इज 8.4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्या है, एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ। If average wavelength of solar light to be taken 5500 angstrom, then how many photons are received on the earth per centimeter square per minute? ठीक है। अब देखो यार, wavelength of solar light 5500 angstrom, that is 5.5 × 10⁻⁷ meter. Therefore energy E equal to hc by lambda जूल। तो hc की वैल्यू कितनी आती है, 19.89 × 10⁻26 अपॉन लैम्बडा 5.5 × 10⁻⁷। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है नियरली 3.6 × 10⁻19 जूल। ये हो गया एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है। एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ कितना है, 8.4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो देखो यहां, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। सो एनर्जी रिसीव्ड कितना है, 8.4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है 3.6 × 10⁻⁹ जूल। यहाँ पे जूल कैंसल
तो 8.4 अपॉन 3.6 into 10 is to the power plus 19 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और इसको सॉल्व करने के बाद नियरली 2.3 into 10 is to the power 19 फोटोन इंसिडेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हमने क्या किया, एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इसको मल्टीप्लाई किया 4.2 से, तो आ गया 8.4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट विद द एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन 5.5 into 10 is to the power -7, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ 5.5 into 10 is to the power -7 एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन 3.6 into 10 is to the power -19 जूल। So number of photon incident per centimeter square per minute is nearly 2.3 into 10 is to the power 19. So option C. Next है, the minimum intensity of light to be detected by human eye is 10 is to the power -10 watt. Per meter square. The number of photon of wavelength 5.6 into 10 is to the power -7 meter entering the eye with pupil area 10 is to the power -6 meter square per second is, तो number of photon per second पूछा है यानी अपॉन टी। अब देखो यहाँ इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और सिंपली P अपॉन ए पावर अपॉन ए और पावर P इक्वल टू आई ए, पावर P इक्वल टू आई ए। पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम NHC बाय लैम्बडा अपॉन टी, पावर P इक्वल टू NHC बाय लैम्बडा इंटू टी इक्वल टू आई ए। So number of photon n upon t, I a lambda upon hc। देखो यार इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे P अपॉन ए और पावर P इक्वल टू आई ए। पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम NH न्यू अपॉन टी और NHC बाय लैम्बडा इंटू टी। सो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड आई ए लैम्बडा अपॉन SC। सो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड आई 10 is to the power -10, एरिया 10 is to the power -6, लैम्बडा 5.6 into 10 is to the power -7 और HC का प्रोडक्ट कितना आता है 19.89 या नियरली इक्वल टू 20 into 10 is to the power -26, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5.6 into 10 is to the power -16 -7 -23 अपॉन इसको लिखेंगे 2 into 10 is to the power -25, 20 into 10 is to the power -26 लिखो या 2 into 10 is to the power -25। (280) बोलो या नियरली 300। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इज नियरली 300, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे पावर, और पावर P इक्वल टू आई ए, ठीक है। नेक्स्ट है, ए रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी 880 किलोहर्ट्ज, that is 880 into 10 is to the power 3 hertz. A power of 10 kilowatt
the number of photon emitted per second are. So again, power P equal to energy supplied upon time, NH nu upon T. So number of photon emitted per second equal to P upon H nu. Number of photon emitted per second equal to P upon H nu. So power at 10 kilowatt, 10 into 10 is to the power 3. H nu, H की value 6.6 into 10 is to the power minus 34 or 6.63 into 10 is to the power minus 34, and frequency 880 kilohertz, that is 8.8 into 10 is to the power 5. 8.8 into 10 is to the power 5. तो ये हो जाएगा 10 is to the power 4, 6.6 into 8.8 into 10 is to the power minus 29. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा नियरली 1.72 into 10 is to the power 31 photons per second. ठीक है, नेक्स्ट है n photons of wavelength lambda are absorbed by black body of mass m. The momentum gained by body is. अब देखो यहाँ मोमेंटम ऑफ फोटोन, P equal to h by lambda. ठीक है, n number of photon are absorbed by black body, so total momentum n be the number of photon and momentum of each photon h by lambda. ठीक है, and when this photon is incident on a black body, it absorbs all the photons, so therefore momentum gained by photon momentum gained by black body. तो जितना मोमेंटम ऑफ फोटोन है उतना मोमेंटम क्या करेगा वो गेन एन एच बाय लैम्बडा. सो मोमेंटम गेन बाय ब्लैक बॉडी इक्वल टू एन एच बाय लैम्बडा. सो ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट है 44. A monochromatic source of light emit photon of frequency 6 into 10 is to the power 14 hertz. The power emitted by the source 8 into 10 is to the power minus 3 watt. Calculate the number of photon emitted per second. अब देखो यार, सिंस पावर P इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम एन एच न्यू अपॉन टी, सो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम इक्वल टू P अपॉन एच न्यू. P इक्वल टू 8 into 10 is to the power minus 3, H 6.63 into 10 is to the power minus 34, and frequency 6 into 10 is to the power 14. तो यहाँ पे 8 into 10 is to the power minus 3, 6.63 into 6, $39.78 into 10 is to the power minus 20, या नियरली 39.78 को नियरली 40 into 10 is to the power minus 20, 1/5 that is 0.2 into 10 is to the power plus 17, or 2 into 10 is to the power 16 photons emitted per second. ठीक है,
तो ये हो गया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एमसीक्यू। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के एमसीक्यू। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।